Welcome students to the next lecture. We are continuing with the chapter Principles of Management. We are going to today see or revise rather, because we have already done all this in Google Meet lectures. We are going to see the scientific management principles, quick revision, written by Frederick Winslow Taylor. The full name I've already told you, whenever objective it comes, you must write the whole name. You should try with writing the appropriate and spelling. You should take care of it. And in your answers, if you write F.W. Taylor, that will be fine. Okay. So he was an American. He started his career as a machinist and then later became a chief engineer. Okay, and his principles were based on scientific. Scientifically he prepared his principles. There was a scientific approach, and due to his contribution in a scientific way, he was called the father of scientific management. Yes, and where are these principles applicable? It is not applicable everywhere. It is applicable only in industrial area, in factory area. ठीक है, because इनका जो भी concentration principles were based on the factory, okay, where workers work. Okay, तो उनका जो भी principles था, concepts था, वो worker focused है. Okay, so all these things you must keep in mind for your objectives, and of course for the introduction of your answer for the scientific management principles. ऐसे पूछा गया है तो introduction में भी आप ये use कर सकते हो. Okay, who is the person, from where is he, okay, and how did he prepare his principles. He's the father of scientific management, and where are his principles applicable? It is applicable in industrial या factory area में ये इनका principles लागू हो सकता है. Okay, so this much you must remember. Let's go. This is the picture of F.W. Taylor. There was a definition which is given for the for this principle, written by himself. Okay, scientific management consists of knowing what you want men to do exactly and seeing that they do it in the best and cheapest manner. Okay, तो scientifically ये कैसा काम करने का, छोटा काम को आप scientifically कैसे करें, ऐसा सोचें. Okay, and जो काम कर रहा है, दैट इज वर्कर, ही नोज व्हाट ही इज सपोज टू डू. ठीक है, तो उनको क्या करना है एग्जैक्टली उनको मालूम है, और उनसे वैसे ही करवाना ताकि सबसे किफ़ायती और सबसे आसान तरीका से साइंटिफिकली हो जाए वो काम. ठीक है, सो ये डेफिनेशन वो था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डीपली. Science not rule of thumb. Okay, so we quickly see what is rule of thumb. It's a practical and approximate way of doing something. Approximate मतलब पूरा clear नहीं है, approximate. ठीक है, समथिंग बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. तो आपका खुद का जो जजमेंट है, आपका एक्सपीरियंस से आप कुछ काम करते हो, तो ये रॉन्ग वे होता है अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर. ठीक है, दूसरा मेथड हमने देखा, ट्रायल एंड एरर मेथड. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेड वेरिड अटेम्प्ट्स विच आर कंटिन्यूड अंटिल सक्सेस. मतलब आप कुछ ना कुछ अलग अलग तरीका ट्राई करते रहते हो जब तक आप सक्सेस नहीं पाते हो, तो ये भी गलत तरीका होगा. ओके, तो इनका क्या तरीका था, साइंस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू टेलर, टू अचीव organizational efficiency, the best method of performing the smallest of job should be determined through scientific analysis. छोटे से छोटे काम को आप उसका करने का मेथड, उसका करने का तरीका आप अपनाओगे साइंटिफिकली. एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिकली? एक्सपेरिमेंट करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर आप जाके कंक्लूजन बनाओगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज रिटन. यू कैन ऑल्सो राइट दिस. ओके, साइंटिफिक एनालिसिस मीन्स व्हाट? This you've learned last year also. Okay, so all this you can write and close your bracket. Now, manager can hence define the standard time and standard output of a job. तो इसका रिजल्ट क्या है, आप साइंटिफिकली डिसाइड करोगे करने का मेथड, तो ये आपको ना सिर्फ मेथड देता है, आपको एक स्टैंडर्ड देता है. ओके, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, इसका अनुमान भी आ जाता है अगर आप साइंटिफिकली आप मेथड को आप तैयार करते हो कोई भी काम करने के लिए.
ठीक है. सो दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम एंड एनर्जी एंड अचीव द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पहले से साइंटिफिकली तय हो गया, तो सबको मालूम है क्या आउटपुट होना चाहिए, तो वो बिना टाइम के बर्बाद होते हुए, ओके, टाइम टू टाइम, ओके, उतना आउटपुट आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं फॉर द मैनेजर एज वेल एज वर्कर. Okay, so I hope you've understood science, not rule of thumb. So this is a picture depicting that science is better and rule of thumb is wrong. Okay, harmony not discord. तो harmony हमने देखा क्या है, peace, peaceful state जहाँ disagreements नहीं है. Discord means क्या, disagreements, झगड़ा. Okay, so harmony between employers and managers will help reduce any conflict between them. ओके, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को ये अगर पीसफुल है तो कोई भी झगड़ा नहीं होने वाला है. तो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब सब सुख शांति है. ओके, विच इज़ एसेंशियल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल और सक्सेस. अगर पीस है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट है कंपनी में, यस, तो सब अपना गोल अचीव कर पाएंगे. कंपनी का गोल अचीव होगा क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं शांति से. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम. हार्मनी मतलब जब सीखा हुआ पियानो बजा रहा है और दूसरा एक बच्चा बजा रहा है जिसको कुछ मालूम नहीं है. सो डिस्कॉर्ड, ठीक है, तो पीस रहना चाहिए कंपनी में ताकि काम हो. ठीक है. मेंटल रेवोल्यूशन, ये हमने देखा है. रेवोल्यूशन इज कंप्लीट और मार्क चेंज इन समथिंग. ओके, फुल चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजमेंट, ये हमने देखा. ओके, सो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं. बोथ आर वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वर्कर्स नहीं, या वर्कर्स इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स नहीं. ऐसा नहीं होता है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलाने के लिए. ओके, सो ऐसा अगर एटीट्यूड में चेंज हुआ तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आई हैव टोल्ड यू व्हाट ऑल मैनेजर्स एक्सपेक्टेड टू चेंज इस एटीट्यूड. आप उनका एटीट्यूड में कैसा चेंज होना चाहिए. मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए. ओके, ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम साइंटिफिकली, क्रिएट सूटेबल वर्किंग कंडीशन, गिव फेयर रेम्यूनरेशन, उनको मोटिवेट करे, उनको उनका मोरल को बूस्ट करे. ये सब मैनेजर ने करना चाहिए. ओके, और एम्प्लॉय का चेंज ऑफ एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. ही शुड वर्क विथ डिवोशन टू देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी, अपना खुद का 100% देना चाहिए. एंड यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग देम. घर का हम कुछ वेस्ट नहीं करते, ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी बिना कुछ वेस्ट किए. ओके, ऐसे डेडिकेशन और एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए. सो दिस इज अ चेंज और मेंटल रेवोल्यूशन, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स. ठीक है, so this is a diagram about that. Now cooperation, not individualism. I told you this is similar to the you will see lots of similarities between Henry Fayol's principles as well as F.W. Taylor's principles. So Taylor emphasizes on mutual cooperation between the two workforce. टू वर्कफोर्स में कौन कौन है, एक है मैनेजमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयज. ओके, तो कोऑपरेशन, अगर ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, ये सब जरूरी है टू क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर सजेशंस. तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज ने क्या करना चाहिए. ओके, मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द एम्प्लॉयज सजेशंस, उनको सुन के लेना. ओके, और उनको कंपनी का एक भाग, उनको इंक्लूड करना हर चीज में. ओके, एंड कंसिडर देम एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इससे जो एम्प्लॉय है उसको he will feel nice, he will feel as if he belongs to the organization. तो ये मैनेजमेंट का कर्तव्य है कि एम्प्लॉयज़ का सजेशन सुन के ले और उनको इंक्लूड करे हर चीज़ में. ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम द मैनेजमेंट. ओके, तो एम्प्लॉयज़ का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑपरेट करे, कि खुद का ना सोचे, पहला मैनेजमेंट पहला कंपनी का सोचे. ठीक है, तो स्ट्राइक में ना जाए जिससे कंपनी को नुकसान होगा. ठीक है, ठीक है, डिमांड्स रखो लेकिन अननेसेसरी डिमांड्स जो पूरा नहीं हो सकता है, ऐसा डिमांड्स रख के मतलब नहीं है. तो कोऑपरेशन. ओके,
नेक्स्ट इज so if everybody cooperates with the work, सब काम व्यवस्थित होगा. Okay, so this picture depicts that. Now responsibility, division of responsibility. यहाँ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बराबर बटा हुआ रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू FW टेलर. ओके, देयर शुड बी प्रॉपर डिविजन of responsibility. Abhi, what will the management do and what will the employees do? Planning is done by the top and middle level authorities. They should encourage, help and guide employees. उनका यही कर्तव्य है. और employees का क्या है? They should concentrate on execution of plan and report as per the instructions given by the superior. तो उनका प्लान को ये एग्जीक्यूट करेंगे, उनका जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो बराबर फॉलो करके उनको रिपोर्ट करना, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज. सो आई हैव स्प्लिट बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज 2 पॉइंट्स. ओके, मैनेजर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, दोनों अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे. दिस विल हेल्प टू बेटर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ओके, so this is a picture for that. Development of employee, this is the last point, an employee for greater efficiency and maximum prosperity. I have told you what is prosperity. मैनेजमेंट के लिए क्या prosperity है? अच्छा सेल्स होना, अच्छा प्रॉफिट कमाना. ओके, एंड ठीक वैसे एम्प्लॉय का क्या prosperity है? उनका पर्सनल ग्रोथ. ओके, वो जगह में उनका प्रमोशन, यस, उनका डेवलपमेंट, ये सब एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉस्पेरिटी है. ओके, तो FW टेलर बोलते हैं कि दोनों को ही प्रॉस्पेरिटी का अनुभव होना चाहिए. ओके, सो अभी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़. आप कितनी भी अच्छा से रखे आपका कंपनी को. ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ फंड्स, ठीक है, आपके पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो actual performance or actual success of an organization comes with the skills and capabilities of the employees. Okay, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को ample development opportunities, okay, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. स्टार्टिंग में तो मिलता है, बीच में भी अगर उनके करियर में कहीं भी कुछ नया आया जिससे वो जूझ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर पाए. ओके, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइक उनको फर्दर स्टडीज का अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हो एज कंपनी, उनको टाइम दे सकते हो, उनको फंड कर सकते हो. ठीक है, तो दिस वे you can give employment you can give employees training and development opportunities जिससे उनका efficiency बढ़ेगा और उनका efficiency की वजह से कंपनी को ही बेनिफिट मिलने वाला है. ओके, कंपनी विल डू वेल. इफ कंपनी डज वेल, ऑब्वियसली उन दोनों को ही प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉई को भी. ओके, सो विद दैट वी स्टॉप हियर. ओके, this is the all the points written. Okay, as I've told you, you can make a password kind of thing. Okay, so here you see initial letters SHMCDD. Okay, so I mentioned this when I was teaching you that if you make password for each and every answer of yours, तो ये SHMCD2, तो इसका आप Sam hit my cat dusty dew. ओके, तो ऐसा एक सेंटेंस बनाओगे. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का ये कोड है. ओके, सैम हिट माय कैट डस्टी ड्यू. तो ये अगर ये सेंटेंस याद है आपको तो आप पॉइंट्स याद रखना आपको आसान हो जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड. सो आई ट्राई टू पुट इट इन माय PPT presentation for you to prepare such code words for each and every answer so that you can remember the points. Okay, at the like OCGC subject mein, if you make such code words, it is easy for you to remember your answers. Okay, so do make it a practice because every slide or every answer will not be able to make code words for you. This was just an example so that you make one for every answer and you remember them. Okay, ये लिखना नहीं है. आंसर शीट में बहुत बच्चे लिखते हैं, ये लिखना नहीं है. ओके, इट इज़ जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस. आप मन में रखो और आंसर आप लिखोगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.